Welcome to MDC Learning, Standard TY Subject Indirect Tax. Hello learners, today we will talk about GST. Under that, we will focus on place of supply of goods. The various illustrations on place of supply of goods. So, first of all, let's know about the marks allotment. The analysis of marks allotment is given on your screen. Each question will contain 2 marks. 1 mark will be allotted for determination of place of supply, and 1 marks will be given for giving reason why that particular place you are considering as your POS, that is place of supply. Let's go further and focus on illustration with solution from your exam point of view. Now on your screen you can see the first illustration, which reads as Mr. Raj of Mumbai, Maharashtra sells 10 TV sets to Mr. Vijay of Nagpur, Maharashtra. Mr. Raj of Mumbai ने Mr. Vijay of नागपुर को 10 टीवी सेट्स बेचे हैं। तो अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए और दूसरा रीजन बताइए। प्लेस ऑफ सप्लाई आप लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स है, एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन अ प्रीवियस लेक्चर वीडियोस, दैट जिस जगह पे हमें गुड्स सप्लाई किया जाता है, जिस जगह पे गुड्स को डिलीवर किया जाता है, उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। सो क्वेश्चन में देख के इट्स वेरी मच क्लियर दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नागपुर, क्योंकि जो 10 टीवी सेट्स है वो नागपुर महाराष्ट्र में सप्लाई किए गए हैं। देन यू हैव टू राइट द रीजन। रीजन इज द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर टू द रेसिपिएंट, दैट्स व्हाई द place of supply will be a delivery location. चलिए, let's move toward the second illustration with a solution. Mr. Raj of Mumbai, Maharashtra sells 30 TV sets to Mr. Vinod of Bangalore, Karnataka. Again, same type of question, that the goods, the 30 TV sets is delivered from Mumbai to Bangalore. So delivery location is Bangalore. That's why my place of supply will be Bangalore, Karnataka. And below that the reason will be same, that the movement of goods from a supplier to the recipient, that's why the place of supply will be a delivery location. Let's go a step further and let's see our next illustration. Mr. Raj of Mumbai, Maharashtra gets an order of 100 TV sets from Sales Haven Limited of Chennai, Tamil Nadu. Sales Haven mentions that it will arrange its own transportation and take TV sets from Mr. Raj X factory. Students, when you will solve questions related to place of supply, पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन बेच रहा है एंड कौन खरीद रहा है, दैट इज हु इज द बायर एंड हु इज द सेलर। ओके, सो ये पहली चीज आपको अपने दिमाग में लानी है कि कौन बेच रहा है एंड कौन खरीद रहा है। सो Mr. Raj of Mumbai, Maharashtra is selling it and Sales Haven Limited of Chennai, Tamil Nadu is purchasing it. So place of supply will be Chennai, Tamil Nadu, जहां goods जा रहा है. And the reason will be simple, that is the place of supply is the location of the goods where the movement of goods terminates for delivery to the recipient, which is at Chennai. For complete understanding of this particular illustration, here on your screen you can see a simple diagram. Students, what happened? Mr. Raj ने जो टीवी सेट्स थे वो मुंबई में ही सेल्स हेवन को दे दिया था, और सेल्स हेवन वो पूरा सामान मुंबई से खुद, आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में लिखा गया है, खुद अरेंज करके ट्रांसपोर्टेशन सेल्स हेवन ये पूरा सामान चेन्नई लेके जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो मुंबई में उसने रिसीव किया है तो मुंबई होगा डिलीवरी लोकेशन या चेन्नई। सो ऐसे केस में ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में आप पहले ब्रैकेट में देख सकते हैं सेलर है
buyer receives goods in Maharashtra, but the buyer himself is taking that goods away. Buyer takes the goods to the Chennai and the buyer जो है हमारा वो चेन्नई में रजिस्टर्ड है. ये एक छोटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. जब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो थोड़ा काम डाउन होके सोचिएगा और उसके बाद ही अपना आंसर दीजिएगा. चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. Now on your screen you can see our next illustration, which is basically about sales and the buying of a particular goods. Okay, but here the most important thing is that there is no movement of goods. इसके पहले जो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं वहां मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात की गई है. हालांकि हम यहाँ जो अब क्वेश्चन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे वो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है. यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में है. प्लीज स्टूडेंट्स उसको अच्छे से देखिएगा, उसे अच्छे से स्टडी करिएगा, उसके बाद ही आपको इलस्ट्रेशंस कंप्लीटली समझ में आएंगे. So now on your screen there is an illustration for no movement of goods. So it reads as, the illustration reads as, Sales Haven Limited, Chennai opens a new showroom in Bangalore. It purchases a building for a showroom from ABC Retailers, Bangalore, along with pre-installed workstations. Okay. सेल्स हेवन जो चेन्नई की कंपनी है वो एक शोरूम खोलती है बेंगलोर में, और ऑफ कोर्स बेंगलोर में अपना शोरूम खोल रही है तो जो उसने अपना शॉप लिया है, जो शोरूम लिया है या फर्नीचर लिया है, शोरूम में ऑलरेडी फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, ये सारी चीजें उसने बेंगलोर के ही रिटेलर से लिया है. सो स्टूडेंट्स ये एक नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है और मैंने बहुत ही क्लियरली आपको ये समझाया है कि व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हमारा POS दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. जहां पे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो जगह हमारी बन जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई. सो इन सच अ केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज बैंगलोर बिकॉज वो शोरूम, वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग हमारी है बैंगलोर में. रीजन आपके स्क्रीन पे है. इट इज वेरी इजी दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स. गुड्स क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? गुड्स है हमारा वो शोरूम, वो वर्क स्टेशंस. सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी क्या है? तो हैंडलिंग ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग टू द रिसीवर. लेट्स गो फर्दर एंड द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज ऑन योर स्क्रीन. Strong Iron and Steel Limited of Mumbai asks Mrs. SAS Constructions of West Bengal to build and install a blast furnace in their Jharkhand steel plant. Okay, so हमारी जो मुंबई की स्टील कंपनी है वो वेस्ट बंगाल की कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी से कहती है कि मुझे एक ब्लास्ट फर्नेस को इंस्टॉल करना है. कहाँ पे? झारखंड में. कंपनी मुंबई की है जो खरीदना चाहती है, वेस्ट बंगाल की कंपनी है जो बेचना चाहती है, लेकिन ये सारी चीजों का इंस्टॉलेशन जो होने वाला है वो झारखंड में होने वाला है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने ये भी क्लियर कट बताया था दैट व्हेन द टर्म कम्स इंस्टॉलेशन और buying different products from a different place and installing it in a different place, so ऐसे केस में place of supply बन जाता है place of installation. so यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई हुई है, place of supply बन जाएगा हमारा झारखंड. रीजन बहुत ही क्लियर है that in the above case although Mrs. SAS is in a West Bengal, the goods blast furnace is being installed at site in a Jharkhand. That's why the place of supply has become a Jharkhand. Here I want to tell you one important thing, that is place of supply of course आप बहुत ही clearly simply लिख दीजिएगा, but reason is up to you. It's completely
up to a writer, up to a learner, that how that person want to write and reason. आप अपने own words में भी reason लिख सकते हैं. There is no hard and fast rule that reason should be written in a particular specific format. So let's go a step further and let's see the next illustration. Sales Haven Limited of Chennai opens a new showroom in a Bangalore. It purchases a building for a showroom from ABC Retailers, Bangalore, along with pre-installed workstations. Place of supply is Bangalore. There is no movement of goods, and this question is very easy to understand that ABC Retailers Bangalore में है, जो कि शोरूम जिनका है, और यहाँ पर भी हमारा नो मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात आती है. मूवमेंट नहीं हो रही है गुड्स में, और गुड्स जो है वो बेंगलोर में है, दैट इज प्रॉपर्टी हमारी बेंगलोर में है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल अल्टीमेटली बिकम दी बेंगलोर. नेक्स्ट वन इज मिस्टर विजय इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय एयर. He purchases coffee and snacks while on the plane. The airplane is registered in both Mumbai and Delhi. यहाँ पे मिस्टर विजय जो है वो मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं. उन्होंने प्लेन के अंदर कॉफी खरीदी है. अब मुंबई से प्लेन ने टेक ऑफ किया है, तो मुंबई हमारी जो हो जाएगी वो डिपार्चर वाला प्लेस हो जाएगा, एंड दिल्ली जो होगी वहां पे प्लेन अराइव करेगा. प्लेन दोनों के ही बीच में कहीं भी नहीं रुका है, तो ऑफ कोर्स जो कॉफी है या स्नैक्स है उसे प्लेन के अंदर मुंबई में ही बोर्ड किया गया होगा, चढ़ाया गया होगा. तो यहाँ पे क्लियर कट है कि बात है कि जो सामान है वो मुंबई में प्लेन में चढ़ाया गया है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम मुंबई. डू यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन दैट और हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कन्वीनियंस के हिसाब, कन्वीनियंस वगैरह के हिसाब से वो प्लेन में चढ़ाया जाता है. ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि मैंने आपको अ व्हाइल अगो एक्सप्लेन किया है. लेट्स गो फर्दर टुवर्ड द रीजन. द फूड आइटम वर लोडेड इनटू द प्लेन एट मुंबई, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स मुंबई. So let's see our next one. Mr. Vinod is traveling to Mumbai via train. The train starts at Delhi and stops at a certain stations before Mumbai. Vinod boards the train at Vadodara, Gujarat, and promptly purchases lunch on board. The lunch has been boarded in Delhi. So, see, अभी मुंबई से में वो ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मिस्टर विनोद मुंबई में ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन जब फूड की बात आती है तो जहां पे फूड को उस पर्टिकुलर ट्रेन में या प्लेन में चढ़ाया गया होता है उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई का कहते हैं. सो हमारे क्वेश्चन में जो फूड था, जो लंच था, उसे दिल्ली में ट्रेन में बोर्ड किया गया था, चढ़ाया गया था, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा दिल्ली. रीजन इज वेरी इजी. द फूड आइटम वेर लोडेड इन दिल्ली इन अ ट्रेन. सो यही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है. मिस्टर मालिनी इंपोर्ट स्कूल बैग्स फ्रॉम चाइना फॉर हर शॉप रजिस्टर्ड इन मुंबई. सी स्टूडेंट्स, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आती है तो बहुत ही क्लियर कट अपने दिमाग में रखिए. जिस जगह पे गुड्स को भेजा गया है, जहां उस गुड्स को डिलीवर किया गया है, वही जगह हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है. एग्जाम्पल 1 में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा मुंबई, क्योंकि गुड्स को मुंबई में डिलीवर किया गया है. एग्जाम्पल 2 एक्सपोर्ट का है. मिस अनीता कोलकाता में रहती हैं, वो एक्सपोर्ट करती हैं इंडियन परफ्यूम्स टू यूके. सो अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यूके में वो एक्सपोर्ट करती हैं, बट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम कोलकाता. यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, एंड देयर इज very little chances, or I would say no chance in your BCom exam for example 2 to come. So thank you students for attending today's lecture. I see you in next lecture. Take care and study properly.